नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो बिटिया। Myself, JVN, Dr. Alka Jain, Associate Professor in the Department of Community Medicine, Faculty of Homeopathic Science in Jyoti Vidyapeeth Women's University. In the series of digital sessions, today my lecture is on the topic of dynamics of disease transmission. Now, what is dynamic of disease transmission? Mainly here the term is used for communicable disease. As all of you know that disease may be broadly classified into communicable disease and non-communicable disease. And communicable disease, those disease which communicate from one person to another by different modes of transmission. And non-communicable disease are those disease which which do not transfer from one person to another. So if we take examples of communicable disease, there are so many communicable disease. Infectious disease are comes most of the infectious disease are comes under the communicable disease like tuberculosis, typhoid, dengue, chickenpox, malaria, rubella. So many disease are now the most latest example of communicable disease is corona. This is COVID-19. And the non-communicable disease are mainly chronic diseases like diabetes, hypertension, obesity, and cancers, blindness. All these disease comes under the category of non-communicable disease. Now, uh, disease which spreads from one person to another in communicable disease. So to maintain this from one person to another and from one person to another person and from another person to another person, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से दूसरे से तीसरे पर्सन में और तीसरे से चौथे पर्सन से, इस तरीके से ये चेन चलती रहती है. जैसे कि अभी आप इस पैंडेमिक 2020 में देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, दूसरे से तीसरे में, और कितने ही लोग हैं जो अब तक इससे अफेक्टेड हो चुके हैं. तो ये चेन किस तरीके से मेंटेन होती है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कौन कौन सी फैक्टर्स है जो कि मस्ट है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक इस चेन को मेंटेन करने के लिए. तो चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है? इट इज ए प्रोसेस दैट बिगिंस व्हेन एन एजेंट leaves its reservoir or host through a portal of exits and is transported by some mode of transmission, then enters through an appropriate portal of entry to infect a susceptible host. All the words which are written in blue color is the factors which are very important to maintain chain of infection cycle. Now here you can see in pictorial diagram, first of all agents means causative agents. Then what happens? This agents enters into the reservoir and infects another person. After getting infection from these agents exits through this person, means there are different portal of exits. What happens after exiting agents by different modes of transmission? It enters into another host through portal of entry or portal of inlet. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These 6 factors are very much essential for maintaining a chain of
infection. Now here this presence of microbial agents, microbiological agents or microbial agents, and these agents are viruses, bacteria, protozoa, archaea, uh, and presence of reservoirs means reservoirs who harbors and infections and where the pathogens or microbial agents multiplies, and after uh, infecting a persons, there is a portal of exits and the different modes of transmission. It enters in another susceptible host through a different portal of entry. Now, incubation period. As all of you know about incubation period, and for your revision, uh, you must know what is incubation period. And the period, this period is from exposure to infection to the onset of symptoms or signs of infectious disease. So, in different types of disease, there are different durations of incubation period. In some disease, there is a short incubation period, and in some disease, there is a long incubation period. So, the length of the incubation period depends upon the portal of entry, मीन्स जो माइक्रोबियल एजेंट्स है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स है, जो पैथोजन है या जो एजेंट्स है, पॉजिटिव एजेंट्स है, वो कहाँ से एंटर हो रहा है ह्यूमन बीइंग के अंदर, पर्सन के अंदर कहाँ से एंटर हो रहा है. अब जैसे आप डिफरेंट मोड्स होते हैं, थ्रू ड्रॉपलेट जो होता है, ड्रॉपलेट में क्या होता है, कहाँ से एंट्री होती है, थ्रू नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू. और जो टाइफॉइड है उसमें फीको ओरल रूट होता है, और किसी डिजीज में टाइफस है जैसे, तो उसमें स्कैबीज है, उसमें स्किन के थ्रू होता है. तो यहाँ पे जो जितने भी डिफरेंट पॉजिटिव एजेंट्स है, उनका सबका अपना अपना पोर्टल ऑफ एंट्री होता है. फिर उसके बाद होता है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द होस्ट. अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि इंक्यूबेशन किसी डिजीज, किसी पर्टिकुलर डिजीज का कैसे लंबा और छोटा होता है. यदि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द होस्ट बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होगा. और यदि डिले हो रहा है ग्रोथ में और मल्टीप्लिकेशन में, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग होगा. And it depends upon the dosage of the infectious agents. यानी कि या तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यदि वायरस बैक्टीरिया एंटर करते हैं, तो भी उस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट हो सकता है, या फिर डोजेज यदि कम है तो उसकी वजह से लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच decides the incubation period either long or short is the host resistance. If there is a very if there is a good resistance in the host, then causative organisms do not multiply easily, and so the incubation period may be long. Now, agents. Agents are microorganisms which are responsible for a disease productions, and these are viruses, bacteria, protozoa, parasites, fungi, and many more. And the agent factors that affect disease transmissions, यहाँ पे भी ये है कि जो agent factors है वो disease transmission को किस तरीके से affect करता है. Infectivity कितनी है उस particular agent की, pathogenicity कितनी है, virulence, antigenicity. इनको हम डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. Now, what is infectivity? Infectivity is the ability of an agent to invade and multiply in a susceptible host. Means एजेंट की कितनी एबिलिटी है पर्टिकुलर होस्ट को जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको कितनी फास्टली वो इन्वेड कर सकता है, और वहां जाके फिर वो मल्टीप्लाई किस स्पीड से, किस रेट से हो रहा है, ये भी डिपेंड करता है. अलग अलग एजेंट्स जो होते हैं उनमें सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, इन्फेक्टिविटी की अलग अलग रेट होती है. नाउ सेकेंडरी अटैक रेट, इसका जो एग्जाम्पल है उससे लिया जा सकता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ
exposed susceptible persons who become infected. अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है पैंडेमिक 2000, इससे अच्छा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता कि जिसकी सेकेंडरी अटैक रेट इज अबाउट बहुत ज्यादा है जिसकी, क्योंकि यदि एक बार जो कांटेक्ट में आता है वो ऑलमोस्ट इन्फेक्ट होता ही होता है, इन्फेक्टेड होता ही है वो, तो इसकी सेकेंडरी रेट अटैक रेट इज मोर देन 90%। तो इसका जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस एंड नंबर ऑफ ससेप्टिबल्स इनटू 100, यानी कि ससेप्टिबल्स तो अब कोरोना जैसी डिजीज का यदि एग्जांपल दे यहाँ पे, तो ससेप्टिबल तो सब ये, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, ये बच्चों में भी हो रहा है, बच्चों में भी 1 महीने के बच्चे में, 15 दिन के बच्चे में भी हो रहा है, तो ये बड़ों में भी हो रहा है, यानी 70, 80, 85 साल तक के बच्चों बुजुर्गों में भी ये डिजीज हो रही है। तो इसका मतलब कि ससेप्टिबल यहाँ पे जो होगा कि इसमें पूरे ऑल एज ग्रुप इंक्लूड होगी। कुछ डिजीज होती है जो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही होती है, बट यदि कोरोना का एग्जांपल है तो नंबर ऑफ ससेप्टिबल्स जो आएंगे इसमें वो उसमें सारी एज इंक्लूड होगी फ्रॉम चिल्ड्रन टू एल्डरली पीपुल्स। नाउ अब उनमें यदि एक कोई पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है तो उस पर्सन से वो कितने दूसरे केसेस को persons को इन्फेक्ट कर सकता है, वो नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस इनटू 100. सो हियर यू कैन से द सेकेंडरी अटैक रेट ऑफ कोरोना और COVID-19 disease is very much high, very much high. And the other examples are measles, chickenpox, and COVID-19 already told you. And the low infectivity rate जो example है वो है leprosy. Now infectivity के बाद में फिर आता है पैथोजेनिसिटी। अब इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक क्लिनिकल रिएक्शंस आफ्टर इन्फेक्शंस। इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेक्टेड पर्संस हु डेवलप क्लिनिकल डिजीज। अब यहाँ पे मान लो कि किसी कोई भी पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट्स है, उसकी यदि पैथोजेनिसिटी बहुत ही लो है तो वो क्या करेगा कि लेटेंट केस हो जाएगा या सब क्लिनिकल केसेस में डेवलप हो जाएगा। बट यदि उसकी पैथोजेनिसिटी बहुत हाई है, बहुत जल्दी वो डेवलप हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है और पैथोजेनेसिस डेवलप कर रहा है, तो उसकी चांसेस क्या होंगे, केसेस यानी कि क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स बहुत जल्दी उसमें डेवलप होंगी। जैसे हाई पैथोजेनेसिटी है, मिजेल्स है, चिकन पॉक्स है, ये these are the examples of high pathogenicity. And the examples of low pathogenicity are polio, tuberculosis, hepatitis A, meningitis and AIDS. अब यहाँ पे दीदी tuberculosis का example आ जाए, ऑलमोस्ट ये tuberculosis का इंडिया में जो हाल है वो ये है कि हर तीसरा चौथा पर्सन जो होता है वो इसके एक्सपोजर में आता है और कहीं ना कहीं उसका जो बैक्टीरिया होता है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वो साइन एंड सिम्टम्स डेवलप करे because of the low pathogenicity of tuberculosis bacteria, means Mycobacterium tuberculoi, and it can be measured by ratio of clinical to subclinical cases. यदि लो पैथोजेनिसिटी होगी तो सब क्लिनिकल केसेस होंगे और यदि हाई पैथोजेनिसिटी होंगी तो क्लिनिकल केसेस डेवलप होंगे। क्लिनिकल केसेस वो केसेस होते हैं जिनमें की साइन एंड सिम्टम्स विजिबल होते हैं। Now the another factor is virulence, and it refers the ability of organisms to produce severe pathological reactions, and it is the proportion of persons with clinical disease who become severely ill or die. अब यहाँ पे पैथोजेनिसिटी में भी वो सेम चीज बताई थी कि किसी किसी पर्टिकुलर कॉजिटिव एजेंट्स की बहुत ज्यादा हाई पैथोजेनिसिटी होती है और किसी की लो पैथोजेनिसिटी होती है, बट विरुलेंस को यदि यहाँ से कंपेयर किया जाए तो विरुलेंस का मतलब ये है कि यदि बहुत हाईली विरुलेंट होगा तो उस पर्सन में पैथोजेनिसिटी तो सब डेवलप होगी, बट और ज्यादा सीवियरली इल होगा वो, और पेशेंट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल यदि लिया जाए तो इसका है रेबीज, हेमरेजिक फीवर्स एंड which is caused by Ebola and Marburg viruses. Now इसको यह इस तरीके से कहा जा सकता है कि उस पर्टिकुलर डिजीज की केस फर्टिलिटी रेट क्या है। केस फर्टिलिटी रेट जो होती है जिसको शॉर्ट में कहा जाता है CFR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कि सेकेंडरी अटैक रेट बताई थी और केस फर्टिलिटी रेट बताई थी, ये बहुत बार आप लोगों के वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये जो केस फर्टिलिटी रेट होती है ये होती है टोटल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ए डिजीज एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ दैट डिजीज।
इंटू 100। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सेकेंडरी अटैक रेट में क्या हो रहा था कि सिर्फ इन्फेक्शन हो रहा था, इन्फेक्टिविटी थी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन हो रहा है। बट केस फर्टिलिटी रेट में क्या है कि इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रहा है, बट उस इन्फेक्शन की वजह से फर्टिलिटी रेट कितनी है, यानी कि डेथ कितनी है। अब यदि यहाँ पे कोविड-19 का एग्जाम्पल लिया जाए तो उसकी सेकेंडरी अटैक रेट तो बहुत ज्यादा है, बट उसकी केस फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है। या अब तक जो इंडिया में जो डेथ हुई है वो इंडिया में या ऑल ओवर जो कंट्रीज में हुई है, कंपैरिजन में इंडिया में तो बहुत कम हुई है, बट अदर कंट्रीज में इससे ज्यादा हुई है। पर फिर भी इसकी जो केस फर्टिलिटी रेट है वो कंपेरेटिवली काफी कम है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ डिजीज प्रोडक्शन मीन्स पैथोजेनेसिस कैसे डेवलप होती है किसी पर्टिकुलर एजेंट के थ्रू। इन्वेजिनस, सबसे पहले इन्वेजिनस होता है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है और इन्वेजिव करता है। और फिर उसके बाद में वो टॉक्सिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी और अदर इम्यून सप्रेशंस, यानी कि इन सब के थ्रू वो पैथोजेनेसिस डेवलप कर सकता है। या तो टॉक्सिसिटी, जैसे कि टिटनेस में टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उस टॉक्सिन की वजह से ही पैथोलॉजी डेवलप होती है। और किसी की वजह से जो मिजेल्स का जो वायरस होता है वो इन्वेट करता है, फिर उसके बाद में पैथोलॉजी डेवलप करता है। किसी का हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है कि पर्टिकुलर किसी भी पॉजिटिव एजेंट्स के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है, हाइपर सेंसिटिव उसकी वजह से कैसे पैथोलॉजी डेवलप हो रही है। और अदर इम्यून, एड्स का जो एग्जांपल है उसमें इम्यूनिटी किस तरीके से लो हो जाती है और पैथोलॉजी डेवलप होती है। सो हियर आई एम कंक्लूडिंग दिस लेक्चर of dynamics of disease transmission. And this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. So if I hope you understand well, and if there is any query, please mention it in comment box. Thank you.